So good morning everybody. This is Ayush Kumar and today is the 11th day of my English speaking practice. And I am very glad that I am improving my vocabulary as well as my speaking skills and also each and everything that is required, like good posture, good body language, good verbal skills, means whatever it is required to build confidence in communicating with someone. So now today is the 11th day and I am very happy. And today's topic is also very interesting. Again, let's start with the question. According to past 5 days of topics, can you tell me what topic today it can be? What topic today it can be? Okay, no worries. Let me tell you. What changes happens if a person goes for higher study from his hometown to other cities, other towns, mostly cities, right? What sudden changes, what changes he faces in his life? What changes did he faces in his life? Before starting with the topic, let me tell you why I have chosen this topic. Why I chose this topic. Why I choose this topic. Because this is the phase, this is a time that everyone faces. Everyone. Even I am not so much special that I will not get hurdles in life. Even I have faced it. That's why I have made the video. I am making the video, right? Now the question being is why the changes happens. Do you know changes happens to make something good for you. चेंजेस तो इसलिए आता है ताकि वो आपको अच्छा बना सके, आपको मजबूत बना सके. There was a quote, everything is temporary in this world. Everything except changes. Changes is permanent. Changes is permanent. Let me tell you the example of changes. Suppose an organization is working on the large scale. एक ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल पे वर्क कर रहा है, ठीक है, बट क्या उसका बिजनेस जो है वो लास्ट 10 ईयर्स में जो था वही स्ट्रेटेजी रहेगा? बिकॉज इन 2015 हम लोग को एक इंटरनेट नाम की चीज से इंट्रोड्यूस करवाया गया, दैट इज जियो ने हमें करवाया था, जिसने इंटरनेट सस्ता कर दिया. ऑल्दो सस्ता नहीं बट इट्स अ माइंड गेम. तो वो क्या किया, एक सडन चेंज लाया. क्या सडन चेंज लाया? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. मीन्स जो हो रहा है टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स, दीज आर चेंजेस. तो वही मैंने बोला ना कि 10 साल पहले जो बिजनेस ऑपरेट कर रहा था, जैसे लेट से अभी 2024 चल रहा है, तो द पर्सन हु इज रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इन 2014 will be same as the person who is introducing business today or running the organization today. No, there is totally different. It will be totally different. Yeah, but some factors remain same, but according to changes it does not adopt anything then. So what changes happen? Technology, advancement of technology, e-commerce platforms, everything is going online. That's why social media platforms are at boom. So this is the examples of changes. I know what topic I am choosing. I have taken and where I am going, but it's all right. Information gets corrected. Right? Okay. So let's talk about why this happens. ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि एक ये लड़का जो चूज किया जाता था वो आगे वो. आपने स्पार्टन्स का बात सुना है? स्पार्टन्स. अब पता है लोगों को क्या किया जाता है, या फिर पुराने राजा महाराजा के टाइम पे क्या किया जाता था. जब वो क्या बोलते कोई बच्चा 5 साल का हो जाता था
तो उसको एलिजिबल माना जाता था कि वो अब ट्रेनिंग के लिए तैयार है, और उसे 5 साल जंगल में भेजा जाता था कि जंगल में टाइम बिता के आओ। 5 साल विल बी बेटर एग्जाम्पल या, बट लाइफ स्पैन कैन बी स्मॉल। बट ऐसा क्यों किया जाता था? ताकि वो झेलना सीख सके। क्यों किया जाता था? ताकि वो सीख सके कि वो मीन्स ही कैन बिकम फ्रॉम बॉय टू मैन। स्पार्टन्स ऐसा करते थे, फ्रॉम बॉय टू मैन। अब वो कैसे? वो वहाँ जंगल में जाके, अब जंगल में ऐसा तो नहीं है कि आपको हर चीज़ अच्छा ही अच्छा मिलेगा। वहाँ पे अलग अलग चीज़ फेस करना, जंगली जानवरों से बचना, खाना पीना ढूंढना, ये सब फैक्टर्स आते थे। तो और उसमें ये भी कंडीशन था कि अगर कोई मतलब कि अपना लाइफ स्पैन, मतलब जो उसका, मतलब जब तक उसको भेजा गया 5 साल, लेट से 1 2 3 ईयर्स, इसमें जितना भी साल मतलब उसको भेजा गया है, उसमें अगर वो सर्वाइव कर गया तो वेल एंड गुड, उसको एक अच्छा वो माना जाता था, योद्धा। बट अगर उसको जंगली जानवर खा भी गए, जब वो मर भी गया, तो भी ये माना जाता था कि वो ट्रेनिंग फेज में मरा है। यू कैन अंडरस्टैंड, क्या आप सोच सकते हो कि एक फैमिली अपने बच्चे को 5 साल के लिए भेज रही है ताकि वो स्ट्रगल फेस करे। दिस इज वॉट इट इज, समझे? अब आते हैं बात, सपोज अब ये चेंजेस क्यों आता है? जैसे स्पार्टन्स की लाइफ में भी चेंजेस आया। जो बॉय है वो 5 साल पूरा किया, तब तक तो अपने फैमिली के साथ था, बट फिर उसको अपने फैमिली छोड़ के अपने खुद के उसके लिए लड़ना पड़ रहा था, खुद को खाना देने के लिए, खुद को पानी देने के लिए। तो इन रियल वर्ल्ड यही होता है। अब ये कैसे? देखो, जैसे आप 10th दिए, बहुत लोग 10th के बाद बाहर आ जाते हैं, बहुत लोग 12th के बाद अदर सिटीज़ में चले जाते हैं, ठीक है? बट 10th आप लोग जब दिए, तब हु इज़ द मीन्स, ऐसा कौन सा था फैमिली में मेंबर जो कि हर चीज़ को मैनेज कर रहा था? इट इज़ टोटली राइट, योर फादर। योर फादर। क्या वो आपको बताने जाते थे कि हाँ मेरा इतना खर्चा हुआ, इतना खर्चा हुआ, इतना खर्चा हुआ? नहीं, वॉट एवर इट टेक्स, वो खुद से वो करते थे मैनेज, खुद का दिमाग अप्लाई करते थे कि कैसे कैसे हो सकता है, कैसे बजट बनाना है, कैसे बिजनेस संभालना है, या फिर जॉब पर्सन तो जॉब कैसे संभालना है, फैमिली कैसे संभालना है, मीन्स मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल। तो वहाँ पे आप किस पे डिपेंडेंट है? पेरेंट्स पे। ऑल्दो ये सडन चेंजेस तब आया, आप बाहर गए, लेट से आप घर से बाहर निकले, ये मैं अपना स्टोरी बता रहा हूँ, अपना वो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कोई 10th के बाद बाहर आ जाता है, कोई 12th के बाद बाहर आ जाता है, आप बाहर निकले, ठीक है? वहाँ पे आपको कितना चीज़ देखना पड़ेगा, और खाना अच्छा मिल रहा है कि नहीं, फ्लैट तो से फ्लैट तो मिल ही जाता है, बट फ्लैट के लिए भी आपको ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए भी स्ट्रगल है, ठीक है? खाना आपको अच्छा मिल रहा है कि नहीं, आपको प्रॉपर मटेरियल मिल रहा है कि नहीं। बट द थिंग इज, अब यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, आप बोलोगे क्या इसमें वो चेंजेस का क्या वो है, मतलब कि उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है किसी पे? क्योंकि यू गेट लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम होम, लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी। आप ऐसा भी नहीं है कि आप घर में बार बार बता सकते हो कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, नहीं। यू हैव टू फेस बाय योर सेल्फ, फेस एवरीथिंग बाय योर सेल्फ, वेदर इट इज गुड और वेदर इट इज बैड। इवन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं यहाँ रांची में बहुत बार ठगा हूँ, मेनी टाइम्स, बहुत बार ठगा हूँ। बड़ा पता है, इंडियन फैमिली ठगाना को एक बहुत बड़ा वो माना जाता है, बहुत बड़ा। ठगाना को मतलब ये क्या बोलते हैं, अगर आप किसी से बिट्रे हो रहे हो तो वो बहुत बड़ा वो माना जाता है कि बच्चे में दम नहीं है या वो कुछ। बट अकॉर्डिंग टू मी ये नहीं है सही। इवन माई यंगर ब्रदर, मैं उसे भी बोलता हूँ कि जो काम करना है करो, क्या होगा? ठगाओगे, क्या होगा? कोई बिट्रे करेगा,
इट्स ऑल राइट, इट्स टोटली ऑल राइट, इट्स टोटली ऑल राइट। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं बहुत बार बिट्रे हुआ हूँ, ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ, बट इट्स टोटली ऑल राइट बिकॉज चेंजेस आर परमानेंट, नथिंग इज टेम्पररी इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंजेस, सो दिस इज वॉट इट इज। तो वही होता है, आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ सम ऑफ मनी मिलता है, उसी में आपको देखना पड़ता है, आपको मेस भी मैनेज करना है, आपको सब चीज़ मैनेज करना है। आप अगर कोई क्लासेस जा रहे हैं, जैसे मैं गिटार क्लास जा रहा हूँ, उसका मैं पापा से नहीं लेता, वो जो मनी भेजते उसी में से बचा के वो करता हूँ। मैं मार्शल आर्ट्स कर रहा हूँ, वो भी मैं पापा से नहीं लेता, वो भी मैं खुद से मैनेज कर रहा हूँ। अगर मैं जिम भी जाता तो उसका भी प्रोटीन वोटीन का मैं खुद से ही करता, पापा से नहीं मांगता। मीन्स पापा मेरे एक लिमिटेड सम ऑफ मनी दे रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि मैं अलग से उनसे मांगने जाऊँ कि हाँ पापा मुझे इस चीज़ के लिए चाहिए, नहीं, नॉट एट ऑल। सो ये होता है, वहाँ घर में आपके फैमिली मैनेज कर रहे हैं हर एक चीज़, या आपको खुद मैनेज करना है, आपको स्ट्रेस मैनेज करना है, आपको मनी मैनेज करना है, आपको अपना टाइम मैनेज करना है। यहाँ कोई बताने नहीं वाला है, घर में बताने वाला था, इट इज़ योर चॉइस कि आप कैसे अपना टाइम मैनेज कर रहे हैं, कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, कोई आपको बताने वाला नहीं रहेगा, यू आर दी ओनली वन जो कि समझ सकते हो, समझे। मैं तो अपना बताता हूँ, मैं बहुत गलती करता हूँ, बहुत गलती, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गलती करता हूँ, बट मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज गलती कर रहा हूँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। आई एम्बेरस माई मिस्टेक्स, मीन्स एम्बेरस बोल रहा हूँ मैं अपनी गलती को मानता हूँ, उसको सुधारता हूँ। तो इसीलिए एक सडन चेंजेस जो आता है ना, वो गुड है, अच्छा है। मतलब चेंजेस अच्छे बदलाव के लिए ही आता है, अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन चेंजेस बदलाव के लिए आता है, मेरे एक्सपीरियंस और परसेप्शन से मैं बता रहा हूँ। सो दिस इज वॉट टुडे इट इज, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी दैट आई हैव completed my 11th day. I know the topic is lengthy, but अगर कुछ सीखना है तो ऑब्वियसली अच्छा से देखना पड़ेगा। हाँ, एक और चीज़, चेंजेस में ये भी आता है कि आप अपना फिटनेस पे ध्यान दो, मीन्स आप टाइम मैनेज कर लोगे तो आप फिटनेस के भी काम कर सकते हो, एंड फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो मैं अपने माँ पापा यही एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए पापा मैं कल करोड़ों कमाने लग गया, तो अगर आप लोग फिट ही नहीं रहेंगे तो मैं उनको घुमाऊंगा कैसे, हाउ। सपोज आई बिकेम अ मिलियनर बिलियनर, अरे जब सपना देखना ही है तो बड़ा देखेंगे ना, क्यों देखा 1,00,000 2,00,000 ना, मिलियन बिलियन जितना ही में खेलना है। सपोज आई बिकेम अ मिलियनर एंड बिलियनर, मैं पापा मम्मी को ये भी एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने तो खाया भी है अच्छा खासा, मैं यही एग्जाम्पल देता हूँ। तो आप लोग का अगर हेल्थ ठीक नहीं रहेगा, मैं पापा को बोलता हूँ, मम्मी को बोलता हूँ, आप लोग का अगर हेल्थ ठीक नहीं रहेगा तो बताइए मैं कहीं घुमाऊंगा आपको विद इन दिस 4 to 5 years, और तो कैसे, क्योंकि अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। मान लो आप करोड़ कमा रहे हो, बेड पे बेड लेटे हुए हो, मीन्स यू आर लाइक अ बेड रिडन, देन वो करोड़ों का कुछ होगा, मेडिकल पे पैसा जा रहा है, तो यही है कि बाहर में आपको बहुत चीज़ मैनेज करना पड़ेगा, माइंड को मैनेज करना पड़ेगा, स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा, एंड द मेन थिंग इज विथ लिमिटेड सम ऑफ मनी, विथ लिमिटेड सम ऑफ मनी यू हैंडल रिजेक्शन ऑल्सो। बाहर में आप रिजेक्शन भी हैंडल करते हो, मैं तो बहुत जगह किया हूँ, बहुत।
बट कुछ करोगे तब तो रिजेक्शन खाओगे, करोगे ही नहीं तो फिर रिजेक्शन क्या। मैं तो बहुत जगह खाया हूँ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। So this is what today it is, and my topic is going to be over. What changes happens when someone goes out for higher studies from their hometown? Thank you for your time.